Hello student, welcome in SGPS online classes. Today we discuss the topic accounting principle. Accounting principles basically developed by various accounting professions as a accounting rule. The accounting profession has developed certain rule or principle to maintain uniformity and consistency in the recording of accounting transaction. जितने भी अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन है उनको रिकॉर्ड करने के लिए उनमें एक यूनिफॉर्मिटी यानी कि एक रूपता रहे, एक जैसे वो रहे एंड कंसिस्टेंसी मेंटेन रहे, उसके लिए ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो है वो डेवलप करें. These principles are generally accepted. It is the theory base of accounting, and these principles act as a guide for accounting, and these are generally accepted by the accounting professionals. ये सारे के सारे प्रिंसिपल जो हैं एक तरह से गाइड की तरह काम करते हैं. जब भी हम अकाउंटिंग करेंगे तो उसमें ये प्रिंसिपल अपने को गाइड करेंगे, चाहे आप रिकॉर्डिंग करें ट्रांजेक्शन की या लेजर बनाएं या फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएं, तो पूरी अकाउंटिंग में ये प्रिंसिपल हमें एज ए गाइड हमें हेल्प करेंगे. तो इन प्रिंसिपल को हम समझते हैं एक एक करके. या कुछ प्रिंसिपल्स हैं, इससे पहले हमने अजम्पशन समझी थी. ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल इस प्रकार से हैं. द फंडामेंटल अकाउंटिंग प्रिंसिपल आर फर्स्ट अकाउंटिंग एंटिटी और बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल. जनरली business and owner of business both are treated as treated separate from each other. This principle show the difference between business entity and business owner. Second principle related to money measurement principle. This principle guide us that only those transactions are recorded in the books which can be measurable in terms of money. Accounting period principle. This principle guide us how to we record the financial transaction and make conclusion on yearly basis. अकाउंटिंग पीरियड जो एक ईयर का होता है उससे रिलेटेड ये प्रिंसिपल है. फिर है फुल डिस्क्लोज प्रिंसिपल. ये प्रिंसिपल हमें गाइड करता है कि कैसे हमें जितने भी ट्रांजेक्शन्स हैं और बिजनेस रिलेटेड जो अकाउंटिंग से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है उसको पूरा में डिस्क्लोज करना है. फिर है मटेरियलिटी प्रिंसिपल. ये दिस प्रिंसिपल गाइड अस दैट ओनली मीनिंगफुल एंड higher amount transactions are recorded in the books, and at the time of valuation of stocks and various difference between assets and expenses may be mentioned in our accounting. Next, prudence or convergence principle. This principle guide us that future possible losses to be recorded and future profit are not recorded. Cost concept guide us how to record the fixed assets in our books. Matching concept guide us how to match our revenue with our expenses and find out profit. Dual aspect or duality principle guide us each and every transaction having double effect, and we have to record both of it. Revenue recognition concept guide us how revenue is recorded in the books on the basis of realization, not actually received in cash. Verifiable objective concept guide us that accountant should not be biased by various situation, and only those transactions are recorded which having proper evidence. तो शॉर्ट में हमने ये सारे प्रिंसिपल के नाम पढ़े. अब एक एक प्रिंसिपल को हम डिटेल से समझेंगे जिससे बेटर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सके. तो सबसे पहला जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल है वो हम डिस्कस कर रहे हैं,
accounting entity or business entity principle. According to business entity principle, business is considered as a separate entity distinct from its owner. The proprietor of the business is considered as a creditor for the business to the extent of his capital. इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग बिजनेस का ओनर और बिजनेस दोनों एक दूसरे से सेपरेट माने जाते हैं, दोनों अलग अलग माने जाते हैं। तो जब भी हम अकाउंटिंग करेंगे तो ये हमारा बेसिक प्रिंसिपल जो है हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा और ध्यान में रखना पड़ेगा। तो बिजनेस में प्रोप्राइटर जो कुछ इन्वेस्ट करता है उसको हम कैपिटल के नाम से अलग से अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। तो हम यहाँ पे ये चीज़ भी समझेंगे कि जो हम अकाउंटिंग कर रहे हैं वो ऑनर के लिए नहीं कर रहे हैं, बिजनेसमैन के लिए नहीं कर रहे हैं, हम कर रहे हैं बिजनेस के लिए। तो बिजनेस इसमें इमेजिनरी मान के अलग सेपरेट ट्रीट किया जाता है और जो भी अकाउंटिंग हो रही है वो बिजनेस के लिए हो रही है, न कि ऑनर के लिए। और बिजनेस और ऑनर दोनों एक दूसरे से सेपरेट माने जाएंगे और बिजनेस जो भी इंट्रोड्यूस करेगा उसको कैपिटल करेंगे और बिजनेस से अगर कुछ ऑनर विड्रॉ करता है तो उसको ड्राइंग माना जाता है। तो इसमें और आगे हम समझते हैं, हिज कैपिटल इज कंसिडर्ड एज ए लाइबिलिटी ऑफ द फर्म। और उसने जो कुछ पैसा लगाया है वो एक तरह से बिजनेस ने ओनर से लिया है पैसा। तो बिजनेस से ओनर ने लिया है, जैसे हम कहीं से लोन लेते हैं तो वो हमारे लिए लाइबिलिटी बन जाता है, वैसे ही ओनर से जो पैसा लिया है बिजनेस ने वो भी बिजनेस के लिए लाइबिलिटी माना जाता है। सिमिलर टू द बोरिंग फ्रॉम आउटसाइडर, यहाँ ये समझने की बात है कि कैपिटल इज कंसिडर्ड एज लाइबिलिटी ऑफ द फर्म सिमिलर टू द बोरिंग फ्रॉम आउटसाइडर। ठीक वैसे ही जैसे हम बाहर वालों से पैसा उधार लेते हैं वैसे ही ओनर ने जो पैसा लगाया है बिजनेस में जिसको हमने कैपिटल बोला है वो बिजनेस के लिए लाइबिलिटी मानी जाती है। Thus, separate set of books of account is kept and maintained for recording business transaction, and transaction are to be recorded from point view of the business entity and not the from the point view of the proprietor. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमें हर समय जब भी हम जर्नल सीखेंगे आगे हर जगह ये काम आएगी। तो इन अकाउंटिंग प्रिंसिपल को बहुत ही अच्छे से समझना है। तो ये जो बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल है वो ये बताता है कि हमें बिजनेस और ओनर दोनों को सेपरेट मानना है और जो भी हम अकाउंटिंग कर रहे हैं वो पूरा का पूरा सेट ऑफ बुक्स बिजनेस के लिए है और बिजनेस पॉइंट व्यू से ही हम सारे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे। प्रोप्राइटर के जो भी पर्सनल ट्रांजेक्शन है वो बिजनेस की बुक में रिकॉर्ड नहीं होंगे। द पर्सनल ट्रांजेक्शन ऑफ द ओनर आर केप्ट सेपरेट फ्रॉम बिजनेस ट्रांजेक्शंस। तो ये हमने समझा अकाउंटिंग प्रिंसिपल फर्स्ट जो हमने समझा जो था अकाउंटिंग एंटिटी और बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। अब हम आते हैं सेकंड प्रिंसिपल पे। सेकंड प्रिंसिपल है मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल। मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल, according to this principle only those transactions are recorded in the books of account which can be measured in term of money। यानी कि जो भी ट्रांजेक्शन है जिसको हम रुपए में काउंट कर सकें, करेंसी में काउंट कर सकें, वो ही ट्रांजेक्शन बुक में रिकॉर्ड होंगे, बाकी रिकॉर्ड नहीं होंगे। फॉर एग्जाम्पल सेल ऑफ गुड्स ₹1000, परचेज ऑफ ₹5000, परचेज ऑफ मशीनरी 30,000। तो हर एक ट्रांजेक्शन में एक पर्टिकुलर अमाउंट होगा और मेजरेबल होगा इन टर्म ऑफ मनी और वही हम बुक में रिकॉर्ड करेंगे। अब इसमें जो क्वालिटेटिव टर्म्स हैं वो रिकॉर्ड नहीं की जाती क्योंकि वो मनी में मेजरेबल नहीं है, रुपए पैसे में काउंट नहीं हो सकती। On the other hand, all those transactions which cannot be measured in term of money are not recorded and ignored in the books of account. For example, appointment of manager, harmonious employee-employer relation, टीम ऑफ द डेडिकेटेड एम्प्लॉय etc। तो ये सारी चीज़ें मनी में मेजरेबल नहीं है, वो रिकॉर्ड नहीं होगी। तो जो भी वर्क किया है उसको हम सैलरी से काउंट कर सकते हैं, लेकिन उसका जो इफेक्टिव कोई अलग से वर्क है एम्प्लॉय का, जैसे डेडिकेशन है, तो उसको बुक में रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता।
या एम्प्लॉय एम्प्लॉयर के रिलेशन को बुक में रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये सारे क्वालिटेटिव एस्पेक्ट हैं जिसको हम मनी में जो है काउंट नहीं कर सकते। फिर है थर्ड प्रिंसिपल, अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल। As per going concern principle, life of the business is fairly long, but user of financial accounting cannot wait for the financial statement till the liquidation of the business. वैसे तो हमने पहले जो समझा था अजम्पशंस में या कंसेप्ट में, ये प्रिंसिपल और कंसेप्ट आपस में एक दूसरे की जगह यूज किए जा सकते हैं। यही अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट भी कहा जा सकता है इस प्रिंसिपल को, और जितने भी प्रिंसिपल हैं उनको हम कंसेप्ट भी कह सकते हैं। तो ये सारे आपस में प्रिंसिपल या कंसेप्ट बोलें इनको, तो यहाँ समझने की बात है कि हमने जो समझी थी ऑन गोइंग कंसर्न, उसके अकॉर्डिंग क्या है, बिजनेस लॉन्ग टर्म के लिए चलेगा ऐसा मान के हम बिजनेस की अकाउंटिंग करते हैं। लेकिन बिजनेस के कंक्लूजन हम बिजनेस क्लोज करने के टाइम पे कैलकुलेट नहीं करेंगे। एवरी ईयर हम बिजनेस के प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो फाइंड आउट करना चाहते हैं। इसके अलावा बहुत सारी जो इन्फॉर्मेशन होती है वो ईयरली हमें सबमिट करनी होती है, चाहे बैंकर्स को या गवर्नमेंट को एज ए टैक्स कैलकुलेशन जो करके हम बुक्स ऑफ अकाउंट सबमिट करते हैं वो भी ईयरली बेस पे करते हैं। तो अकाउंटिंग पीरियड जो कंसेप्ट है या प्रिंसिपल है उसके अकॉर्डिंग आपको एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए जो भी है उसके कंक्लूजन निकालने होंगे, और जो जनरली 1 ईयर होता है, जो कैलेंडर ईयर या फाइनेंशियल ईयर हो सकता है, लेकिन टैक्स पर्पज से फाइनेंशियल ईयर ही काउंट होता है जो 1 अप्रैल से 31 मार्च होता है। तो यहाँ पे हमने समझा कि बिजनेस वैसे तो लंबे टाइम तक चलेगा, लेकिन बिजनेस बंद हो उसका इंतजार नहीं किया जा सकता, और आपको टाइम टाइम पे सारी इंफॉर्मेशन जो यूजर्स हैं उनको प्रोवाइड करनी होगी। Moreover, this is not feasible proportion to many users like management, bankers, financial institutions, and creditor require accounting information at the regular interval so that make a point to decision on the timely basis. सभी को टाइम से टाइम इंफॉर्मेशन चाहिए होती है। मैनेजमेंट रिक्वायर इन्फॉर्म एट अ रेगुलर इंटरवल टू रिव्यू ऑपरेटिंग फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। मैनेजमेंट को भी टाइम से टाइम जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है उसको चेक करना होता है, और उस पे जो भी डिफरेंसेस हैं उस पर करेक्टिव एक्शन भी लेना होता है। इफ एनी बैंकर एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट रिक्वायर अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन एंश्योर रेगुलरली इंटरेस्ट पेमेंट एंड safety of the funded loan. Similarly, the government need accounting information on the yearly basis to collect the various type of taxes. बैंकर भी टाइम से टाइम इंफॉर्मेशन मांगते हैं जिससे उनका जो भी लोन का रिपेमेंट है वो टाइम से हो पाए और उसका इंटरेस्ट पे कर सके। गवर्नमेंट को भी टाइम से टाइम जो टैक्स है वो सबमिट कराना होता है। इसके लिए बिजनेस में जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो फिक्स पीरियड के लिए कैलकुलेट किए जाते हैं जो जनरली 1 ईयर होता है। इट इज़ देयर फॉर थॉट prudent all business should prepare the financial statement to know the profitability and financial position on periodic basis. Normally, it is only yearly basis. This interval of time called accounting period. और ये जो अकाउंटिंग पीरियड है वो 1 ईयर का होता है। जनरली क्वेश्चन में कभी कैलेंडर ईयर होता है तो 1 जनवरी टू 31 दिसंबर होगा, और फाइनेंशियल ईयर है तो 1 अप्रैल टू 31 मार्च होगा। यानी कि जो भी अकाउंटिंग कंक्लूजन है अपन 1 साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे, 1 साल की रिकॉर्डिंग करेंगे, उसको लेजर में ट्रांसफर करेंगे और बैलेंस शीट बनाएंगे। तो ईयरली बेस पे हम अकाउंटिंग के रिकॉर्ड्स जो हैं वो मेंटेन करते हैं, और उसको वापस जो अपनी बैलेंस शीट बनती है उससे एसेट्स, लायबिलिटीज और कैपिटल नेक्स्ट ईयर में एज इट इज फॉरवर्ड हो जाते हैं, और उस ईयर से रिलेटेड हमें प्रॉफिट या लॉस पता चलता है। तो अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल ये बताता है कि जो भी अकाउंटिंग होगी उसका कंक्लूजन आपको ईयरली बेसिस पे कैलकुलेट करना होगा, और ईयरली बेसिस पे उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने होंगे। अब अगला है फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल require that financial statement make complete, adequate and fair disclose of all information which is relevant and significant to user.
यानी कि जो भी अकाउंटिंग के यूज़र हैं उनके लिए जो भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो सही सही और पूरी तरीके से उन्हें डिस्क्लोज करना होता है, कोई भी इंफॉर्मेशन छुपानी नहीं होती है। बहुत सारे यूजर्स हैं जैसे इन्वेस्टर, लेंडर्स, क्रेडिटर्स, रिसर्चर, गवर्नमेंट एंड रेगुलेटरी एजेंसीज। दिस प्रिंसिपल ऑफ फुल डिस्क्लोजर रिक्वायर दैट all the material facts which help in the appraisal of operating and financial performance of an organization must be disclosed in the financial statement in the footnote. Thus, the user can analyze and interpret the financial statement suit their objective. तो यहाँ पे ये प्रिंसिपल हमें बताता है कि कोई भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन हमें छुपानी नहीं है और फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो हम प्रेजेंट कर रहे हैं उसके साथ साथ उनके फुट नोट में उससे रिलेटेड दूसरी इंफॉर्मेशन भी जो कि रिलेवेंट है, जिस जो यूजफुल है इनके लिए, यूजर्स के लिए, वो हमें डिस्क्लोज करनी है। यानी कि कोई भी चीज़ हमें छुपानी नहीं है जिससे कि उनका कोई डिसीजन गलत हो सके यूजर्स का। तो ये फुली डिस्क्लोज जो प्रिंसिपल है वो हमें ये गाइड करता है कि पूरी पूरी और सही सही जानकारी अकाउंटिंग से आपको प्रोवाइड करानी है इसके यूजर्स को। अगला प्रिंसिपल है मटेरियलिटी प्रिंसिपल। दिस प्रिंसिपल ऑफ मटेरियलिटी required the accounting of material facts in the books of accounts, and accountant need to present the fact which are immaterial, why not to represent the fact which are immaterial while the determining the income of the enterprises. जब भी किसी एंटरप्राइजेस के हम इनकम या प्रॉफिट फाइंड आउट करना चाहते हैं तो उस टाइम पे जो मटेरियल यानी कि जो उस इनकम को इफेक्ट करते हैं वो सारे फैक्ट आपको शो करने हैं, और ऐसे कोई इमटेरियल आइटम जिससे उस पर कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता उसको आप डिस्क्लोज नहीं करो तो भी उसमें जो इनकम है वो सही मानी जाती है। तो यहाँ पे हमें ये ध्यान रखना है कि अलग अलग बिजनेस के नेचर पे डिपेंड करता है कि किस में मटेरियलिटी क्या है। जैसे कोई बिजनेस है जिसका टर्नओवर करोड़ों में है और वहाँ पे आप एक कोई छोटा सा लूज टूल्स है या स्टेशनरी का स्टॉक है, ये ऐसी छोटे मोटी जो आइटम्स हैं उसको आप अलग से बैलेंस शीट में शो न करके एक किसी हेड में भी शो कर सकते हैं क्योंकि वो विशेष मायने नहीं रखता। वहीं छोटा बिजनेस है तो वहाँ पे वो मायने रख सकता है। तो सबके अलग अलग नेचर पे डिपेंड करता है कि किसके लिए मटेरियलिटी मीनिंगफुल है और किसके लिए नहीं। यहाँ पे अमेरिकन अकाउंटिंग जो एसोसिएशन है उसने भी गाइड किया है। अकॉर्डिंग टू अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन, एन आइटम शुड बी रिकॉर्डेड एज अ मटेरियल इफ देयर इज अ रीजन टू बिलीव दैट नॉलेज ऑफ इट वुड बी इन्फ्लुएंस द डिसीजन ऑफ एन इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर। यानी कि मटेरियलिटी वहाँ प्रूव होती है जो पर्टिकुलर जो आपने ट्रांजेक्शन बुक में रिकॉर्ड किया है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में शो किया है, वो किसी इन्वेस्टर के डिसीजन को या उसके नॉलेज को इन्फ्लुएंस कर सकता है, वो आपको मटेरियल मानना है और उसको शो करना है। दस एन आइटम इज मटेरियल टू वन मे बी नॉट मटेरियल टू अनदर। यानी कि जो बड़े बिजनेस के लिए इमटेरियल है वही छोटे बिजनेस के लिए मटेरियल माना जा सकता है। तो ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ द बिजनेस पे कि किस स्केल पे बिजनेस काम कर रहा है। तो ये मटेरियलिटी प्रिंसिपल है जिसके अकॉर्डिंग हम छोटे मोटे जो आइटम्स है उनको अलग से एसेट्स नहीं मान के उसको एक्सपेंसेस मान सकते हैं। इसमें डिपेंड करता है बिजनेस के साइज पे। money spent on the existence of the size of shop is material fact and it will be increase the future earning capacity of the business। जैसे मान लो पर्टिकुलर अपन किसी शॉप का एक्सटेंशन करें साइज का या उसमें फर्नीचर बनवाएं जिससे उसकी अर्निंग कैपेसिटी बनेगी तो यहाँ मटेरियलिटी है। इसके अलावा जैसे अपन ने कोई फ्लैक्स लगाया या ऐसा कोई डिस्पोजेबल एडवर्टाइजमेंट मटेरियल लगाया तो उसको हम एसेट्स नहीं मान सकते, उसको अपन एक्सपेंसेस मानेंगे। जस्ट एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस मान के उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अपने को शो करना है। तो मटेरियलिटी डिपेंड करती है उसकी वैल्यू पे। तो फर्नीचर जो कि वैल्यूएबल है, कई साल चलेगा, तो यहाँ मटेरियलिटी है, तो वो एक्सपेंसेस नहीं मान के एसेट्स माना जाएगा।
और यही छोटा मोटा अगर आपने कोई बैनर लगाया या कागज का कोई पोस्टर बनवाया जो कि ऐड के लिए है, तो उसको अपन एक्सपेंसेस मानेंगे, ना कि उसको, उससे भी अपनी सेल बढ़ रही है लेकिन उसको हम एक्सपेंसेस मानेंगे। इसी टाइप से जैसे स्टॉक है स्टेशनरी का, तो उसको हम एक्सपेंसेस मानते हैं और उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मानते हैं, क्योंकि वो छोटा आइटम है और ज़्यादा वैल्यू का नहीं है। तो ये मटेरियलिटी हमें डिसाइड करने में हेल्प करती है कि किसको हम एक्सपेंसेस माने और किसको एसेट्स। अब नेक्स्ट जो प्रिंसिपल है वो है प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्टिज्म और प्रूडेंस। According to the principle of convertism, if the management anticipate loss, provisions should be made for the loss. But if anticipated profit, it should not be recorded in the books of account. It means we have to make provision for future possible losses, but not make provision for the future profits. ये प्रिंसिपल सीधा सीधा ये बोलता है कि इन फ्यूचर जो कोई प्रॉफिट होने वाला है उसको बुक में रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है, लेकिन इन फ्यूचर जो पॉसिबल लॉस है जो हो सकता है, तो उसके लिए आपको पहले से प्रोविजन करके रखना है। यानी कि फ्यूचर पॉसिबल लॉसेस को आप पहले से बुक में रिकॉर्ड करोगे, लेकिन फ्यूचर पॉसिबल प्रॉफिट्स को बुक में रिकॉर्ड नहीं करोगे। तो ये प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्टिज्म या प्रूडेंस कहलाता है। दिस प्रिंसिपल state that management should be conscious while ascertaining income filing which profit will be overstated and it will mean declaration of dividend out of capital। इसका मतलब ये है कि अगर अपन ने फ्यूचर प्रॉफिट को, जो कि अभी हुआ ही नहीं है, उसको भी पहले से अगर बुक में रिकॉर्ड कर दिया और वो प्रॉफिट बांट दिया, तो वो एक तरह से कैपिटल में से प्रॉफिट बांटना हो जाएगा, क्योंकि प्रॉफिट एक्चुअल में हुआ ही नहीं है और अगर कम होगा वो पैसा तो आउट ऑफ कैपिटल ही कम होगा। तो ये प्रिंसिपल हमें गाइड करता है। इट विल अमाउंट ऑफ रिडक्शन शेयर कैपिटल विल अगेंस्ट द प्रोविजन ऑफ लॉ। दिस प्रिंसिपल इज यूज्ड इन फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस। इसका यूज होता है इन 5 जगह पे। फर्स्ट, वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक एट द कॉस्ट ऑफ मार्केट प्राइस व्हिच एवर इज लेस। स्टॉक का जो वैल्यूएशन है वो मार्केट प्राइस और उसकी एक्चुअल जो कॉस्ट प्राइस है दोनों में से जो कम हो उस पे वैल्यूएशन होना चाहिए, क्योंकि अगर हमने ज़्यादा प्राइस पे वैल्यूएशन कर लिया तो वो हमारे प्रॉफिट को डायरेक्ट बढ़ा देगा, जो कि इन फ्यूचर वो स्टॉक बिक पाए या नहीं बिक पाए ये पॉसिबिलिटी नहीं है। तो स्टॉक का वैल्यूएशन हमेशा कॉस्ट और मार्केट प्राइस दोनों में से जो कम है उस पर वैल्यूएशन किया जाता है। ये सारे प्रिंसिपल जो हैं आपके प्रैक्टिकल अकाउंटिंग में बहुत ही काम आएंगे, इसलिए ध्यान से समझने के। स्टॉक वैल्यूएशन आपके जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट समझेंगे तब काम आएगा। क्रिएशन ऑफ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। यहाँ पे जो डाउटफुल डेब्ट्स हैं, जो हमने क्रेडिट पे सेल किया है हमारे डेटर को, उसमें से कुछ पैसा डाउटफुल होता है कि वो आएगा या नहीं आएगा, तो उसके लिए पहले से प्रोविजन बनाना होता है। क्रिएशन प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर। जनरली डेटर से हम पैसा जब कलेक्ट करते हैं तो वो कुछ ना कुछ पैसा हमें एज ए डिस्काउंट डिमांड करते हैं और कम देते हैं, तो उसके लिए भी पहले से प्रोविजन होना चाहिए। राइटिंग ऑफ द इंटेंजिबल एसेट्स लाइक गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क। ये इंटेंजिबल एसेट्स जिसका इन फ्यूचर वैल्यू डाउन होने वाली है, तो उसको भी हम एवरी ईयर जो है वो राइट ऑफ करना चाहिए। एंड फिफ्थ, जॉइंट लाइफ पॉलिसी भी सेटेड इन द बैलेंस शीट ओनली एट इट सरेंडर वैल्यू। और जो पॉलिसी लेते हैं हम उसको सरेंडर वैल्यू पे ही शो करना चाहिए, ना कि फुल अमाउंट से। तो ये प्रिंसिपल हमें गाइड करता है कि फ्यूचर पॉसिबल लॉसेस के लिए आपको पहले से बुक में जो है प्रोविजन करना है और फ्यूचर पॉसिबल प्रॉफिट्स के लिए नहीं। अब हम आगे बात करते हैं नेक्स्ट प्रिंसिपल, कॉस्ट कंसेप्ट और हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल। जैसा मैंने पहले बोला, कंसेप्ट और प्रिंसिपल दोनों को अपन एक जगह वर्ड यूज कर सकते हैं, एक दूसरे की जगह कंसेप्ट भी बोल सकते हैं, उसी को प्रिंसिपल भी बोल सकते हैं। तो कॉस्ट कंसेप्ट या हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल जो है वो हमें गाइड करता है एसेट्स को रिकॉर्ड करने के लिए। अकॉर्डिंग टू कॉस्ट कंसेप्ट, एसेट्स आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट एट देयर परचेज प्राइस, which includes cost of purchase,
transportation, installation and making the assets ready to use। यानी कि जो भी एसेट्स है उसको हमें परचेज प्राइस पे रिकॉर्ड करना है और उसकी कॉस्ट में क्या क्या शामिल होगा। परचेज प्राइस उसकी कॉस्ट का पार्ट है। आपने जो एसेट्स कहीं बाहर से खरीदी है तो अपने शॉप तक लाने के लिए या अपनी फैक्ट्री तक लाने के लिए या अपने बिजनेस पॉइंट तक लाने के लिए जो भी आपने ट्रांसपोर्टेशन पे किया है वो भी उसका कॉस्ट का पार्ट है। तो उस ट्रांसपोर्टेशन को अपन ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस के नाम से न लिख के एसेट्स की कॉस्ट का पार्ट मानेंगे और उसको एसेट्स के नाम से ही बुक में रिकॉर्ड करेंगे। और इंस्टॉलेशन चार्जेस, कोई भी नई एसेट्स खरीदें उसको यूज करने से पहले इंस्टॉल करते हैं, वो भी उस एसेट्स की कॉस्ट का पार्ट है। तो वो उस एसेट्स की वैल्यू में ऐड करके ही हम बुक में एंट्री करेंगे। तो ये हमें बहुत ही ध्यान रखना है क्योंकि जब ट्रांजेक्शन आएंगे जर्नल में तो इस टाइप के ट्रांजेक्शन आएंगे कि मशीनरी परचेज एंड इंस्टॉलेशन पेड। जैसे मशीन खरीदी मान लो अपन ने और उसमें इंस्टॉलेशन चार्जेस पे किया तो दोनों को जोड़ के हम मशीन के नाम से उसको डेबिट करेंगे बुक में। यहाँ पे हम एग्जांपल भी समझ सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अ मशीनरी इज परचेज्ड 40 लाख, 20,000 पेड फॉर ट्रांसपोर्टेशन cost and 10,000 installation cost. It will be recorded in the books of account for 40 lakh 30,000. Thus, the purchase price of the assets actually paid on the basis of accounting for that assets. जो हमने उस एसेट्स को यूज करने से पहले जितना भी खर्चा किया उस एसेट्स की कॉस्ट का पार्ट है। तो ये हम बुक में एंट्री जब करेंगे, जर्नल जब सीखेंगे तो उसमें ये बहुत ही काम आएगा, ये ध्यान रखने की चीज है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ए हिस्टोरिकल कॉस्ट एज इट इज कॉस्ट ऑफ द एसेट्स that has been paid for acquisition and does not change year after year. Deicide change its market price due to price level change. In real practice, historical does not mean that assets will be continue to be shown in the balance sheet of several years at the cost of purchase price. It will be reduced after the charging depreciation based on useful life of assets. यहाँ पे ये भी है कि बुक में हमने एक बार रिकॉर्ड किया तो हिस्टोरिकल कॉस्ट यानी कि जब हमने उसको खरीदा था तब जो पे किया वो उसकी हिस्टोरिकल कॉस्ट है, तो उसी पे बुक में हमें रिकॉर्ड करना होता है। लेकिन साथ के साथ इसमें ये भी ध्यान रखना है कि जो उस पर डेप्रीशिएशन उसको यूज करते हैं उससे उसकी वैल्यू जो डाउन हो रही है वो अपने को बुक में लेस करके मेंटेन करनी है। लेकिन बुक में मार्केट प्राइस उसकी नहीं लिखनी है क्योंकि मार्केट प्राइस हमें तभी मिलेगी जब एक्चुअल में हम उसको बेचेंगे। तो मार्केट प्राइस से बुक में एसेट्स को एंटर नहीं किया जाता, हिस्टोरिकल कॉस्ट से एंटर किया जाता है लेकिन डेप्रीशिएशन लेस करके। तो ये हमने समझा प्रिंसिपल। अब अगला हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल समझ रहे हैं, मैचिंग कंसेप्ट और मैचिंग प्रिंसिपल। अकॉर्डिंग टू मैचिंग कंसेप्ट, एक्सपेंसेस इनकर्ड इन द अकाउंटिंग पीरियड शुड बी मैच्ड विद द रेवेन्यू अर्न ड्यूरिंग द पीरियड। यानी कि करंट ईयर के पूरा जो अकाउंटिंग पीरियड है अपना 1 ईयर का, जो हमने पहले भी समझा है अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट में, तो ये प्रिंसिपल मैचिंग कंसेप्ट ये बोलता है कि किसी भी ईयर का सही से आपको प्रॉफिट कैलकुलेट करना है तो आपको उस 12 मंथ से रिलेटेड इनकम को ही उस 12 मंथ के एक्सपेंसेस से कंपेयर करना चाहिए। यानी कि हम इनकम ज़्यादा पीरियड की ले लें और एक्सपेंसेस मान लो कम पीरियड के लें तो ये कंपैरिजन सही नहीं होगा, प्रॉफिट सही नहीं आएगा। तो मैचिंग कंसेप्ट गाइड अस दैट वी शुड मैच द करंट ईयर एक्सपेंसेस with current year income. Thus, the expenses and revenue must be belong to the same accounting period to determine correct profit of the accounting period. Since the accountant are prepared accrual basis, expenses incurred and accounting period are mentioned with the revenue of that period. इसी प्रिंसिपल से अब क्या है, उस ईयर की चाहे वो एक्चुअल में इनकम मिली या नहीं मिली लेकिन उसको बुक में रिकॉर्ड करते हैं और उससे कंपेयर करते हैं। कुल मिला के 12 मंथ से रिलेटेड इनकम को 12 मंथ से रिलेटेड एक्सपेंसेस से कंपेयर करना है, चाहे एक्चुअल पेमेंट हुआ हो या नहीं हुआ हो या रिसीव हुई हो या नहीं हुई हो। फिर है ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट और ड्यूअलिटी प्रिंसिपल। ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट इज बेसिस प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग on the basis of which transactions are recorded in the books of account. The concept states that business transactions have two aspects, debit and credit, for equal amount. For every debit, there is a credit of equal amount, is one or more accounts, vice versa. The system of accounting is thus called double entry system.
ये जो प्रिंसिपल है वो डबल एंट्री सिस्टम को शो करता है, और डबल एंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंग हर एक ट्रांजेक्शन का डबल इफेक्ट है, जिसको हम डेबिट या क्रेडिट में शो करते हैं। तो जितना अमाउंट डेबिट हुआ है उसके अगेंस्ट उतना ही अमाउंट क्रेडिट होगा, या जितना अमाउंट क्रेडिट हुआ है उसके अगेंस्ट उतना ही अमाउंट डेबिट होगा। तो इस डबल इफेक्ट यानी कि हर एक ट्रांजेक्शन का डबल इफेक्ट है, और उन दोनों इफेक्ट को आपको बुक में रिकॉर्ड करना है। तो पूरा जो अपना जर्नल है वो इस ड्यूल एस्पेक्ट कंसेप्ट के बेस पे बनाया जाएगा, और उसमें हम डेबिट और क्रेडिट करेंगे, और किसको कैसे करेंगे वो डेबिट क्रेडिट रूल का अलग से टॉपिक है, उसमें हम समझेंगे। तो कुल मिला के ड्यूल एस्पेक्ट कंसेप्ट गाइड अस ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन हैविंग ड्यूल इफेक्ट, एंड बोथ इफेक्ट शुड बी रिकॉर्डेड इन फॉर्म ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। और इसी इफेक्ट से हमारा अकाउंटिंग जो इक्वेशन है वो भी शो होता है। इसमें डेबिट एंड क्रेडिट इक्वल फॉर द डेबिट, ये हमने समझा। इसी को आगे समझता हूँ। द सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग इज द कॉल्ड एंट्री और डबल एंट्री सिस्टम। फॉर एग्जांपल, मोहन स्टार्टेड बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग 1 लाख इन कैश। तो बिजनेस में कैश आया, और साथ के साथ क्या आई, कैपिटल। विल इंक्रीज द एसेट्स, एसेट्स विल इंक्रीज, as well as liability side is also increased by the same amount with the capital. We find out two aspect, one or receiving benefit and other is yielding a benefit. benefit मिला है तो वो benefit किसी न किसी ने दिया है। तो ये जो कंसेप्ट है उसके बेस पे ही हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन जो है एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल जो है वो बनता है। वो भी हम ये पूरा अकाउंटिंग इक्वेशन एक टॉपिक है, उसमें आपको और ज़्यादा डिटेल में समझेंगे। अभी सिर्फ प्रिंसिपल के हिसाब से ये हमें समझना है कि हर एक ट्रांजेक्शन का डबल इफेक्ट है, और वो डेबिट और क्रेडिट में शो होता है, और दोनों इफेक्ट आपको बुक में रिकॉर्ड करने हैं। अगला जो प्रिंसिपल है वो है रेवेन्यू रिकॉग्निशन और रियलाइजेशन कंसेप्ट। The concept of revenue recognition required that the revenue for the business transaction should be included in the accounting records only when it is realized। यानी कि इनकम को हमको बुक में उसी समय रिकॉर्ड करना है जब वो रियलाइज्ड होती है, यानी कि जनरेट होती है। Here arise two questions in mind. First, the term revenue, and other, when the revenue is realized. Let's take the first one first. Revenue is the gross inflow of cash arising from the sale of goods and service by enterprises. And second, used by others of the enterprises resources yielding interest, royalty and dividend. Secondly, revenue is assumed to realize when legal right to receive it arise। यानी कि रेवेन्यू जो है वो तब जनरेट मानी जाएगी जब हमें उसको रिसीव करने का लीगल राइट मिल जाता है। जैसे हमने किसी को सेल किया, तो सेल अगर उसने पैसा नहीं दिया है तो हमें उससे पैसा लेने का राइट जो है, लीगल राइट मिल जाता है, तो उस समय वो इनकम जनरेट मानी जाएगी। इसको और समझें। The point of time when goods have been sold or service has been rendered, thus credit sale are treated as revenue on the day of sale are made and not when the money is received. It means income is treated as income when it is generated, not when it is received। जब मिलेगी एक्चुअल में तब उसको रिकॉर्ड नहीं करना है, जब वो जनरेट हो गई, यानी कि उसको रिसीव करने का लीगल राइट जिस दिन हमको मिल गया उस दिन इनकम जनरेट मानी जाएगी, और उसी दिन वो रिकॉर्ड की जाएगी, न कि एक्चुअल में जब रिसीव होगी तब। तो ये एक्चुअल जो कंसेप्ट है वो इसी से रिलेटेड है कि जब भी इनकम जनरेट हो गई तब उसको बुक में रिकॉर्ड करो, चाहे वो कैश में मिली है या नहीं। अब अगला जो प्रिंसिपल है, लास्ट या कंसेप्ट हम जो समझने जा रहे हैं वो है वेरीफाइबल ऑब्जेक्टिव कंसेप्ट। दिस कंसेप्ट रिक्वायर दैट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन शुड बी रिकॉर्डेड in an objective manner and they should be free from the personal bias of the accountant। यानी कि जो भी अकाउंटेंट है वो उसके पर्सनल यानी कि मन मर्जी से कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं कर सकता। ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने से पहले उसका जो एविडेंस है वो होना जरूरी है।
This is feasible only when each transaction is supported by documentary evidence or voucher. जो भी documentary evidence या voucher है उसको आपको साथ में अटैच करना होगा। तो जो भी आप अकाउंटिंग जब रिकॉर्ड कर रहे हो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन तो उसका एविडेंस जो है वो साथ में होना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ परचेज ऑफ गुड्स फॉर कैश देयर शुड बी कैश मेमो। अगर हमने गुड्स परचेज किए कैश में तो उसका कैश मेमो यानी कि ऐसे जो बिल है वो हमें अटैच करना होगा और वहां पे बुक में रिकॉर्ड करने से पहले उसका वाउचर बनाना पड़ेगा। और क्रेडिट परचेज है तो भी उसके इनवॉइस की कॉपी जो है साथ में आपको अटैच करनी होगी। या आपने कोई मशीन खरीदी है तो उस मशीन को खरीदने की जो रिसिप्ट्स है जो आपने पेमेंट करके रिसीव की है वो आपको साथ में अटैच करनी होगी। या आपने जैसे बैंक में डिपॉजिट कराए पैसे तो बैंक की जो डिपॉजिट स्लिप है वो आपको उस एंट्री में पहले वाउचर में अटैच करनी होगी। वाउचर को और हम डिटेल में समझेंगे अलग से। तो ये बेसिक एविडेंस जो है वो जर्नल बनाने से पहले आपको प्रिपेयर करना है, उसके बाद जर्नल एंट्री करनी है। तो ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल ये बताता है या ये कंसेप्ट ये बताती है कि कोई भी ट्रांजैक्शन बिना एविडेंस के बुक में रिकॉर्ड नहीं होगा ताकि उसको हम वेरीफाई कर सकें। जब भी ऑडिट की जाए तो हर एक ट्रांजैक्शन की जो एविडेंस के बेस पे उसको एक्चुअल में हुआ या नहीं हुआ वो चेक किया जा सके। तो ये सारे हमने अकाउंटिंग प्रिंसिपल समझे जो आपके आगे अकाउंटिंग जो हमने समझी थी। अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, क्लासिफाई देम, समराइज देम, कम्युनिकेट टू इट्स यूजर। तो ये जो आगे हम रिकॉर्डिंग सीखेंगे, क्लासिफिकेशन सीखेंगे या जो समराइजिंग सीखेंगे उसमें ये सारे प्रिंसिपल आपके काम आएंगे। तो इन प्रिंसिपल का नॉलेज होना बहुत ही जरूरी है तो ही अकाउंटिंग में यूनिफॉर्मिटी और कंसिस्टेंसी मेंटेन रखी जा सकती है। तो ये थे अकाउंटिंग प्रिंसिपल और कंसेप्ट। थैंक यू।